آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے گاڑیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ نئی گاڑی خریدنا شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ آٹو موبائل ڈیلر فہد علی شیر کا کہنا تھا کہ بجٹ میں آٹو موبائل انڈسٹری کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملا۔ اور نواز کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گزشتہ ایک سال میں گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا، نئی گاڑی خریدنا مشکل ہو گیا۔ آٹو موبائل ڈیلر فہد علی شیر کا کہنا تھا کہ بجٹ میں آٹو موبائل انڈسٹری کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملا، پہلے ہی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، ریلیف نہ ملنا افسوسناک ہے۔ 5 ایئر کا ایک کیپ ہٹایا گیا ہے، لیکن ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں پرانی گاڑی کے لیے ہٹایا، کچھ کہہ رہے ہیں نئی گاڑی کے لیے ہٹایا، لیکن اگر یہ جو جیسے آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں RD ہٹی تھی، ریگولر ڈیوٹی ہٹی تھی، تو ڈالر جب تک ہمارا اسٹیبل نہیں ہوتا اینڈ یوزر پہ تو اس کا کوئی مجھے تو فائدہ نظر نہیں آتا۔ آٹو موبائل ڈیلر صالح حسن کا کہنا تھا کہ آٹو موبائل انڈسٹری کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، معیشیت میں 4% تک ڈالنے والی انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ GDP ہے وہ 4% آٹو موبائل انڈسٹری سے جنریٹ ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی بجٹ میں اس کو وہ حصہ نہیں دیا گیا، وہ امپورٹنس نہیں دی گئی۔ ہاں، خوشخبری ان کمپنیز کے لیے جو آگے فیوچر پلان کر رہی ہیں کہ وہ الیکٹرک گاڑیاں لے کر آئیں گی، کیونکہ بیٹریز کی کسٹمز امپورٹ ساری انہوں نے جتنے بھی ٹیکسز تھے اس کے اوپر وہ ویو آف کر دیا، زیرو ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو باقی ہمارے CKDs آنے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس بڑھ گیا ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں یہاں تو اسمبل ہوتی ہیں، پاکستان میں مینوفیکچرنگ تو کوئی نہیں ہوتی۔ اچھی گاڑی خریدنا ہر شہری کا خواب ہوتا ہے۔ آٹو موبائل ڈیلرز نے حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ اون عباس، ملتان۔ وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ کا اعلان کر دیا۔ بجٹ میں ایلوپیتھک ادویات پر 3% مینوفیکچرنگ ٹیکس برقرار کر دیا گیا ہے، جبکہ بجٹ میں تعمیراتی سامان پر بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ اس بجٹ کے حوالے سے تاج برادری اور سرکاری ملازمین کا کیا کہنا ہے، جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ میں ادویات پر 3% مینوفیکچرنگ ٹیکس برقرار ہے، جبکہ دیسی اور یونانی ادویات پر سیل ٹیکس 3% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا۔ اس پر صدر میڈیسن مارکیٹ اختر بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ادویات کی تیاری پر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ یہ بجٹ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن لگتا ہے۔ دوسری طرف جان بچانے والی ادویات کی مارکیٹ میں بھی قلت ہے، جو کہ بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ڈالر آسمان کے اوپر ہے، بجلی کے پرائسز آسمان کے اوپر ہیں، گیس کی پرائسز آسمان کے اوپر ہیں، و دیگر تمام اشیاء کے اوپر صرف خام مال کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں میڈیسن میں یوز ہوتی ہیں ان تمام کے اوپر ٹیکسز موجود ہیں۔ بجٹ میں تعمیراتی سامان پر بھی ٹیکس بڑھایا گیا۔ اس پر صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ظفر اقبال صدیقی کا کہنا تھا کہ تعمیراتی سامان پر ٹیکس بڑھانے سے تعمیراتی کام بالکل ٹھپ ہو جائے گا۔ جو انہوں نے خسارہ دکھایا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے، بجٹ خسارہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے یہ اس کے لیے بھی یہ انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا۔ جو بھی آئے گا وہ وہی پریشانی میں رہے گا، جو اعداد و شمار انہوں نے دیے ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو بھی بڑا ریلیف ملا ہے۔ اس پر سرکاری ملازمین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے کہ تنخواہوں میں کم از کم 50% تک اضافہ کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے مہنگائی کی ریشو کو تو اس مہنگائی کی ریشو کے حساب سے تو یہ بجٹ بالکل ہی ملازمین کے لیے تو میرے خیال ہے مایوس کن تھا، کیونکہ فیول دیکھا جائے تو فیول کہاں کا کہاں چلا گیا۔ نیا بجٹ جہاں سرکاری ملازمین کے لیے خوشیاں لے کر آیا، وہیں تاجر برادری نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم ساتھی رپورٹر فراز رمضان اور اون عباس کے ساتھ رانا بلال، ملتان۔ باولپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کار ریلی نکالی گئی۔ کار ریلی ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوئی اور فرید گیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت امیدوار PP 256 سید تطہیر الحسن تیرمزن نے کی ہے۔ کار ریلی کا احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں رضا ملک کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہاولپور میں استحکام پاکستان کار ریلی نکالی۔ کار ریلی میں پارٹی قیادت سمیت کارکنان، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امیدوار PP 256 سید تطہیر الحسن ترمیزی نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، گھناؤنے واقعات میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادنا کارکن ہیں۔ ہم لوگوں کا آج کی ریلی کا مقصد یہ ہے کہ فوج کے ساتھ متحد ہیں، پوری قوم پاکستان فوج کے ساتھ ہے۔ جو 9 والا واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جو اس کے مجرم ہیں، جو اس کے ملزم ہیں، ان کو سزا دیں اور ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ آئندہ ایسے سوچیں نہ۔ کار ریلی کے شرکاء نے قومی و پارٹی پرچم لہراتے ہوئے ترانوں پر رقص کیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔
पीपल्स पार्टी यूथ विंग के कारकुनान ने कहा कि पाक फौज हमारा असासा है, किसी भी सूरत कौमी इदारों को आपस में लड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। बहावलपुर से इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में जड़ें पीपल्स पार्टी की मजबूत है। हम उन सोए हुए मेंबरान को, उन सोए हुए कारकुनान को दोबारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी बेस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें 70-80% कामयाब भी हो गए हैं, जिसका गमाज ये हमारी रैली भी है। इस रैली का मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान और हमारी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती भी पेश है। इस्तेहकाम पाकिस्तान का रैली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद सईदुद्दीन, ज़राई जनरल सेक्रेटरी इरशाद अहमद सरोया, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक हन्नान अख्तर ने भी शिरकत की। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। शुजाबाद में मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कुर्सियां लग गई। 80 फुट लंबे और 24 फुट चौड़े स्टेज की तैयारियां। साबिक विफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह का कहना था कि यूथ कन्वेंशन को जलसे में तब्दील कर दिया गया है। मुसव्वर अंसारी की इस रिपोर्ट में देखिए। शुजाबाद में हाई स्कूल के ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मुल्तान की मरकजी क़यादत ने तैयारियों का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुताबिक 10,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि 80 फीट लंबा, 24 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह का कहना था कि यूथ कन्वेंशन को जलसा में तब्दील कर दिया गया है। जिला भर से कसीर तादाद में वर्कर्स शिरकत करेंगे। कहने को तो ये यूथ कन्वेंशन है, मगर जिस तरीके से लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, हमारे दोस्त अपने यहाँ के हलकों के, तहसील जलालपुर पीरवाला, तहसील शुजाबाद, तहसील मुल्तान और पूरे ज़िले की क़यादत आपके सामने मौजूद है। इसी तरह ताहिर शबीर भी आए हुए हैं, बाकी लोग भी अपने अपने हलकों में मसरूफ़ हैं। जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को दावत दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा आम होगा। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना का कहना था कि मुस्तंद सियासी जमात का वर्कर्स भी मुस्तंद होता है। मुल्तान जिले की मुस्लिम लीग नून और डिवीजन के मुस्लिम लीग नून और उसके यूथ के लोग और बाकी लोग मुतहरिक है और इंशाअल्लाह कामयाब जलसा होगा और वक्त की ज़रूरत है। देखिए, जो एक मुस्तनद किस्म की सियासी जमातें होती हैं ना, उनका वर्कर भी मुस्तनद होता है। ये नहीं होता कि ज़रा गर्मी पड़ी और भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर जो है ना, वो भट्टियों से गुजरकर कुंदन बन के बाहर आए हुए हैं। साबिक एमएनए तारिक रशीद का कहना था कि मुल्तान के वर्करों में जोश और जज्बा मौजूद है। पूरे मुल्तान में, हमारे शहर में भी ख़ास तौर पे एक जोश और जज्बा मौजूद है और अपनी कायद के इस्तकबाल के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए लोग आप कल देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये इंशाअल्लाह मुल्तान ज़िले की तारीख का सबसे बड़ा कामयाब तरीन जो है ये शो होगा और इसकी ये एक नई तारीख रकम करेगा जनूबी पंजाब के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्तान को लीगी शहरों का किला बनाने के लिए यूथ कन्वेंशन की कामयाबी के लिए कोशा है। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही न्यूज़, शुजाबाद। महकमा फूड पंजाब के अफसरान की सुनी गई। डेरा गाजी खान में भी फूड अफसरान को तरक्कियां दे दी गई। तरक्की पाने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फूड अफसरान के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड सैयद अयूब बुखारी ने मुलाजमीन और अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। रिपोर्ट करेंगे आसिर इशफाक। डेरा गाजी खान में महकमा फूड के अफसरान को तरक्कियां दे दी गईं। तरक्की पाने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फूड अफसरान के एजाज में तकरीब का इनकाद किया गया। DFC डीजी खान मेहर अख्तर हुसैन ने तकरीब का एहतमाम किया था। मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर के DFC भी तकरीब में शरीक थे। डिवीजन में गंदम खरीदारी मुहिम में पहली 3 पोजीशन पर आने वाले अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर फूड सैयद अयूब बुखारी ने इन अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर उनका कहना था कि डिवीजन भर में 30 से ज्यादा मुलाजमीन को तरक्की दी गई है। उन्होंने तरक्की पाने वालों को मुबारकबाद भी दी। आज की जो तकरीब थी उसके बुनियादी तौर पे 2 मकासद थे। सबसे पहले तो ये कि हमने एक लॉन्ग अवेटेड प्रमोशंस ड्यू थी हमारे फूड स्टाफ की और हमारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उसमें हमने पूरे डिवीजन भर के तकरीबन 30 से ज़ायद जो हमारे ऑफिसर्स थे और ऑफिशियल्स थे उनको प्रमोट किया है और आज हमने उनको उनके ऑर्डर्स दिए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी प्रोक्योरमेंट थी, वीट प्रोक्योरमेंट 2023-24, उसमें जो बेस्ट परफॉर्म करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स थे फूड के, उनको हमने सर्टिफिकेट इशू किए। इंचार्ज मोहम्मदपुर फूड सेंटर समंदर खान ने गंदम खरीदारी मुहिम में डिवीजन भर में पहली पोजीशन हासिल की। इंचार्ज गाजी घाट फूड सेंटर जाहिद ने दूसरी और इंचार्ज कोट अद्दू फूड सेंटर मोहम्मद कैसर उमैर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जो स्टाफ जिसने मेहनत की, दिल लगी के साथ काम किया और वो डिवीजन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आए टारगेट अचीव करने में, उनके एजाज में, और
हमारी को तकरीबन 5 साल के बाद DPC करवाने का जो एजाज़ हासिल हुआ है हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब को, तो उन तमाम प्रमोशन पाने वाले फील्ड मेंबरान व मिनिस्ट्रियल स्टाफ के एजाज़ में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर सरदार खलीलुर रहमान खान लगारी, ज़िला सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन के दीगर अहदेदारान भी तकरीब में शरीक थे। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोहित, डेरा गाजी खान। निज़वा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम तीसरी कुरंदाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इनामात की बारिश, 2 खुश नसीबों को उम्रे और दुबई के टिकट मिल गए। चेयरमैन निज़वा इंटरनेशनल मलिक शफाकत, CEO मलिक गुलाम नबी और वाइस चेयरमैन हाफिज नईम अहमद की शिरकत। CEO का कहना था कि इनामात से मेहनती डिस्ट्रीब्यूटर की हौसला अफजाई होती है। फराज रमजान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में नज़वा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम तीसरी कुरंदाजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के वारे न्यारे, इनामात के साथ साथ खाने का भी वसी इंतजाम किया गया। चेयरमैन नज़वा इंटरनेशनल मलिक शफाकत, CEO मलिक गुलाम नबी और वाइस चेयरमैन हाफिज नईम अहमद की खसूसी शिरकत। मेहनती डिस्ट्रीब्यूटर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। चेयरमैन मलिक शफाकत का कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स से यह वादा पूरा कर दिया। मुल्तान में ये तीसरा लकीरा किया है और बहुत जो हमारे दोस्त बिजनेस पार्टनर हैं वो बहुत खुश गए हैं। आज बहुत इनामात उनको मिले हैं और इसी मेले के समा में इतना अब जूम के इंटरटेनमेंट भी की है और सिंगर रात ने भी बहुत मतलब मेले का समा बांधा रखा है, तो हम भी इसी चीज़ों को देख के खुश हुए हैं। CEO मलिक गुलाम नबी का कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की हौसला अफजाई के लिए इनामात देना जरूरी है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है निज़वा इंटरनेशनल पर और अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। ये हमें जो मोहब्बत मिली है मुल्तान से, निज़वा इंटरनेशनल की प्रोडक्ट जो कर रहे हैं हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, और मुल्तान वालों का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने निज़वा से मोहब्बत की है। ब्रांड एम्बेसडर एनी ताहिर का कहना था कि नज़वा इंटरनेशनल कंपनी ने बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बना ली। आज का जो तीसरा लकी ड्रॉ था मुल्तान में, और मुल्तान वाले वैसे भी बड़ा प्यार करते हैं, और लकी ड्रॉ के मौके पर तो वैसे भी निज़वा इंटरनेशनल लेके आता है इनामात की बारिश, और आप लोगों का प्यार ही है जिनकी वजह से इतना खूबसूरत प्रोग्राम होता है और इतने इनामात हम देते हैं, क्योंकि निज़वा इंटरनेशनल जब से आया है अपनी पहचान बनाई है और पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। कुरंदाजी में खुश नसीबों को 2 उम्रे के टिकट और 2 दुबई के टिकट दिए गए। फनकारों ने भी अपने परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ फराज रमजान, रूही, मुल्तान। रहीम खान साहब को खबर देंगे, जहां जिला इंतजामिया कपास की बेहतर पैदावार के लिए मुतहरिक। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखने और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए सरसब्ज कपास कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है। डीजी ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर का कहना था कि रवां साल कपास की पैदावार में इजाफा करके मुल्क की माशियत को बेहतर करेंगे। आमिर भज्जी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में जिला इंतजामिया कपास की ज्यादा पैदावार के लिए सरगर्म। कपास की बहाली के हवाले से सरसब्ज कपास कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें डीजी ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर, डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर जमील गौरी, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल मुल्तान हैदर करार, ADCR अहमद रजा भट्ट, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन, अफसरान, किसानों व जिम्मेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डीजी ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर का कन्वेंशन के शुरुआत से खिताब करते हुए कहना था कि जिले में 5.5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त कर चुके हैं। कपास की फी एकड़ बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए इंतजामिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। आज एक कन्वेंशन था कि कपास की बिजाई मुकम्मल होने के बाद अब कपास की बेहतर निगहदाश्त की ज़रूरत है। उसके ऊपर काश्तकार पूरे ज़िले से तशरीफ़ लाए थे। कपास की पौधों की पूरी तादाद से लेके उसको पानी और खाद कैसे देनी है, उसमें कीड़ों का कंट्रोल कैसे करना है, स्प्रे कैसे करनी है और बेहतर चुनाई कैसे करनी है और उसको मंडियों तक पहुंचाना कैसे है, सब के ऊपर बड़ी डिटेल में हमारे माहिरीन ने बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि काश्तकार इस मैसेज को बहुत पॉजिटिवली लेंगे और अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ADCR अहमद रजा भट्ट ने कहा कि किसानों व जिम्मेदारों को हर फोरम पर कपास की बेहतर पैदावार हासिल करने बारे आगाही दी जा रही है। रवां साल कपास का साल मनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों को सब्सिडी पर बीज दिए। कपास की बिजाई के बाद अब दूसरा मरहला कपास की निगहदाश्त का शुरू हो चुका है। पहले दिन से ही उन पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमने नंबरदारों के सेशंस किए, हमने किसानों के सेशंस किए, हमने 14 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए। हमें टारगेट 6 लाख से ऊपर मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह उन एफर्ट से, एक माह की एफर्ट से हमने 92% सोइंग इंश्योर कर ली है।
डीजी ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर का मजीद कहना था कि कपास की बेहतर पैदावार से ही किसान खुशहाल होंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।